क्लासेस नहीं होंगी. That day you have to give only your exam, and then for the you have to prepare for the next test. So ओके मेरे हिसाब से नहीं होगी बेटा, और फिर भी अगर कोई चेंजेस हो तो एक बार क्लास टीचर के पास इंफॉर्मेशन होगी पूरी. सर, और एमसीक्यू में अगर हमने कोई भी ऑप्शन करेक्ट है उस पे हम करेंगे तो सर उसको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा साइड में. बेटा अगर एमसीक्यू है तो हमारा को आपका सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है. और कैसे किया है वो वर्किंग, तो वहां पे स्पेस ही नहीं होगा शायद, जहां तक मेरे ख्याल है. तो अगर आप कहीं पे कर रहे हो, सपोज करो आप सब्जेक्टिव में कहीं पे भी कर रहे हो और आपको, तो आप सॉल्यूशन उसको वहीं पे शो कर दो आप बेटा, ठीक है. बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड बेटा. मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि एक बार वो गाइडलाइंस होंगी शायद, मैम ने आपको बताई होंगी, और चेक करो 11th के ग्रुप पे होंगी शायद कुछ, ठीक है. वैसे मैथ्स में क्या है बेटा, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 बी आंसर, सेकंड सी आंसर, दिस में ओनली यू हैव टू राइट योर आंसर, ठीक है ना. ये ध्यान रखना. अगर आप सॉल्व कर रहे हो कोई में, एंड यू आर सपोज टू सेंड द scanned copy of your answer sheet, so I'll suggest you it is better if you are solving a question roughly, तो आप वहीं सॉल्व करके दिखा दो बेटा उसे. मेरा सजेशन है, आपके लिए फायदा है. कई बार क्या होता है आपने आंसर रॉन्ग निकाला लेकिन आपका तरीका सही होता है. समटाइम टीचर्स इम्प्रेस देयर, मतलब इम्प्रेस होता है वहां पे कि आपने सॉल्व सही कर रहे हो लेकिन आपने ऑप्शन गलत लिख दिया है, कुछ ना कुछ मार्क्स दे देता है वो, ठीक है. फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं आपको. ओके, अटेंडेंस बेटा. आकांक्षा, आरव ग्रेवाल, प्रेजेंट सर. आरव शर्मा, अग्नीश, प्रेजेंट सर. ऐश्वर्या, अक्षिता, Present, sir. अमन, अमन तोमर, अंशिका, Present, sir. अरुमिता, Present, sir. आर्यन सिन्हा, प्रेजेंट सर. आयुष, भव्य भारद्वाज, Present, sir. भव्य मिश्रा, Present, sir. दमन, देवांश, दिशिता. Present, sir. दिशिता, you were absent in the last class beta. Yes, sir. All well? Yes, sir. Because We had to go somewhere. That's why I couldn't attend the class. okay. Because I was asking because your first absent beta, last class, you were absent Yes, first sir, time yes. beta, right? Drishan, Galaxy, Gautam Kakkar, Gautam Kumar, Himanshu, प्रेजेंट सर. Jayant. Present sir. Jayant, Yes sir. what happened beta? So last time actually my device was not working, like my memory card stopped working. So like the apps in my memory card were not opening. So the Teams was not opening. So I was Beta, like, in last 5 class you are absent 3 times beta. In the last 5 yeah. class you have missed 3 classes beta. That's why I'm asking, right? Yes. So, Yes. Kanak, Present, sir. Kanha,
कुंजल, Present, sir. लक्ष्य बंसल, Present, sir. लेनॉय, Present, sir. प्रज्ञा, ऋषभ गिरसा, ऋषभ सिंह, Present, sir. रोहन, Sir, present. साहिल, साहिल, संकेत, शाश्वत तिवारी, Sir, Gautam शिवान, present. Present, sir. शिवांश प्रेजेंट. ओके. श्रेया मिश्रा. Present, sir. Shreya, you were absent in the last class, beta. No, sir. You were absent, na beta. That's why I'm asking why. Sir, I wasn't absent. Beta, my attendance record it is absent. You have joined late, beta, that day. Sir, my mic was not working, I guess. Okay, let me check, beta. Okay. Siddhant Sharma. Siddhant Sharma. Siddharth Jain. Present, sir. Present. Vani. Present, sir. Vanshika. Present, sir. Yes, anyone joined late, beta? Sir, Daman Ahuja present. 1 second, beta. Akansha is there. Yes, sir. Aishwarya. Aman Tomar. Yes, sir, present. Aman present. Okay. Ayush Sharma. Daman. Present, sir. Devansh. Drishan. Drishan Malik. Galaxy. Gautam Kakkar. Kanha. Present, sir. Then Pragya. Sahil. Sanket. Shashwat. Siddhant. Sir, Anji beta, who's this? sir, Shreya. Yes, sir. I remember last time I was absent. You were absent, na? Yes, sir. Excuse me, my mic is not working, so उसने हाथ रेस करा है. किसने बेटा? I'm Sir Siddhant Sharma. सिद्धांत शर्मा. 1 second. Okay, बेटा. सिद्धांत शर्मा is present. बेटा अपना माइक ठीक कराओ सिद्धांत.
Okay. But if you have any doubt in chapter number 2, you can ask. Otherwise, I'll take some questions for practice purpose. Anyone is having any doubt, better, they can ask, better. Sir, I have a doubt in chapter 1 assignment, NCQ 1. CQ. Oh, 1 second. I posted in a mass group, na beta? Yes, sir. 1 second, beta. Sir, I can share the assignment if you want. 1 second, beta. Chapter 1, MCQ assignment. Yes, beta. Which question, beta? So question number 7. Question number 7. It is the total number of proper subsets. Total number of proper subsets of set A is equal to null sections are 1, 2, 0 and 4. Right? ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई, आप बताओ खुद आंसर क्या है इसका, बताओ. Sir, my answer is 1. Your answer is 1. Okay. And here they have given answer proper 0. subset. Beta. Proper subset. I think you have applied this formula 2 raised to the power n minus 1. Proper Yes, sir. subset, beta. Okay. Then 2 raised to the power 0 minus 1 equal to 1 minus 1 equal to. बोलो बेटा. Sir, won't we consider 5 as one number, one element? Why 1? 5 matlab beta. There is a difference, beta. If you are writing this and if you are writing this, there is a. Now this is a single element because you are writing in a curly bracket, right? And this is indicating this thing, beta. It means we have no element in this curly bracket. No element means 0. 5 means 0, beta. So we are putting 0 here, beta. 2 raised to the power 0. Okay, sir. ठीक है Got बेटा? it. Any other, beta? So I have doubt. हाँ बेटा बोलो. Sir, it's from chapter 2. Sir, Chapter 2 NCERT, beta. No, sir. Sir, you did. Sir, you discussed it in the class extra questions one, but I was absent that day. Okay, तो क्वेश्चन क्या था पहले आपको मुझे वो बताना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पता It नहीं मैंने is क्या. fx is equals to x minus 1 upon x plus 1. X minus 1 Upon x plus 1. upon x We plus have 1 to show that. We have to show that f1 by x is equals to minus fx. is equal to minus fx, right? Yes, sir. F of 1 by x equal to minus fx we have to. Okay.
We have fx. This beta replace x by 1 by x. So finding 1 by x is equal to, it is 1 by x minus 1 upon 1 by x plus 1. Simplify, it is 1 minus x upon x whole upon 1 plus x upon x. So denominator x cancelled. So we have 1 minus x upon 1 plus x. We are taking minus common beta. So now this become x minus 1 upon x plus 1. And this bracket is the value of f of x. This bracket is a value of f of x and minus is there. So f of 1 by x equal to minus f of x. Right, beta? Okay. Yes, Hmm. sir. And sir, Okay. sir, another question is, if we have to find domain of root 4 minus x. Root 2 minus x. No, sir, root 4 minus x. 4 Okay. minus x. Root 4 minus x Plus 1 by root x square one minus by root x square minus 1. minus 1. Okay. This is fx and we are asking domain. Right. This is valid for what? This root beta. This root 4 minus x is valid for greater than 0 value beta. Because root is not defined for negative value. So this will imply 4 minus x greater than 0. This implies 4 is greater than x. That is, we can write x is less than 4. Right? This is clear beta? सर equals to 4 भी तो आ सकता है. Equals to 4 आ सकता है? हाँ, greater than equal to 0. सही तो बोल रहे हो. Okay. Correct. Now similarly, this value also x square minus 1. This is should also greater than equal to 0 or only greater than 0 beta? Greater than होगा सर क्योंकि denominator. इसमें खाली greater than होगा because if it is equal to 0, 1 by 0 is not defined. So it means here we'll take greater than 0 only. So this is x square minus 1 greater than 0. और ये greater than कब होगा बेटा? बोलो. इसी को देखो बेटा. This minus is infinity to minus 1 एक union what? minus infinity to minus 1 union what to 4. एक ये ले लेते हैं. तो इसके लिए तो आपका ये आ गया डिफाइन के लिए फ्रॉम दिस. अब इस पॉइंट को भी इंक्लूड करो, 4 को भी. अब ये हो गया आपका -1, 1 and +4. So this value, this term is valid only for 1 to infinity and -1 to infinity, minus infinity. So we have a 4. अगर हम ओवरऑल देखें, so this function आपके पास हो गया, एक तो 4 इंक्लूडेड है बेटा, और here we can not include 1 बेटा. ठीक है. तो यहां से यहां तक एक वैल्यू होगी आपकी, एक वैल्यू होगी आपकी यहां से यहां तक, और इसके बीच की वैल्यू अगर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है बेटा? ये नेगेटिव आता है विच इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड है बट ओवरऑल नॉट डिफाइंड हो गया. तो क्या डोमेन आया बेटा इसका? फाइनली फाइनल डोमेन बेटा, बोलो भाई. किसका क्वेश्चन था ये? वंशिका आपका ना बेटा? Yes, वंशिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन बेटा? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड. राइट. तो अब मेरे पास एक इंटरवल आया है -∞ to -1. अब आप इसके बीच की सारी वैल्यू यूनियन, वेरी गुड, 1 to 4 और 4 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन.
ठीक है, तो सेट ऑफ दीज वैल्यूज दिस फंक्शन इज डिफाइंड. ठीक है, 1 4 ठीक है, हाँ सही. हाँ बेटा, और कोई डाउट बेटा? बोलो बेटा, कोई और डाउट है तो, नहीं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेता हूँ बेटा फिर आप चैप्टर 2 के. बोलो बेटा स्टूडेंट्स प्लीज. Excuse me, sir. यस बेटा. Sir, 1/√x minus mod x का रेंज निकालना है. 1 अपॉन, बोलो 1 अपॉन, एक बार और बोलना बेटा. Sir, root old x minus mod x. पहले इसका डोमेन बोलो बेटा. रेंज के लिए पहले डोमेन इंपॉर्टेंट है. डोमेन बताओ बेटा कोई. Sir, minus infinity to 0. माइनस इन्फिनिटी टू 0. चेक करो पहले ये है या नहीं है बेटा. ये कैसे लिया बेटा आपने? अगर मैं -1 वैल्यू लेता हूं तो दिस इज गिविंग -1 तो नॉट डिफाइंड आ रहा है बेटा. बताओ भाई, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? हाँ बेटा. आई आई फाई कुछ भी नहीं. इसका कुछ भी नहीं है. मेरे को तो मतलब नजर ही नहीं आ रहा मुझे कुछ भी. तो रेंज कैसे पूछ ले बेटे, कहाँ का क्वेश्चन है ये? Assignment. Sir, domain ही था. assignment. डोमेन पूछा है, क्या पूछा है बेटा? इसका रेंज पूछा है. मेरे असाइनमेंट में जो मैंने भेजा था बेटा, Domain. The Sir, domain. domain पूछा. डोमेन पूछा है ना. हाँ तो डोमेन क्वेश्चन सही है बेटा. डोमेन तो सही है बेटा. एक बार मैं रेंज पूछ रहा था, मैं रेंज कैसे यार, एक बार मैं चेक कर लूँ यार, मैंने कहीं गलत तो नहीं दे दिया क्वेश्चन. नहीं सर, डोमेन है, मैंने गलत पढ़ा. अच्छा अच्छा, डोमेन है. आंसर दे रखे हैं बेटा, उसमें आंसर चेक करना है बेटा को. सर 5 आंसर. ठीक ठीक ठीक, चलो. और कोई बताओ बेटा. डोमेन रेंज के और क्वेश्चन करने हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा इसके ऊपर, अगर आप कहते हो तो. Yes, sir, please. आई एम टेकिंग सम. Yes. 1 सेकंड बेटा. चलो, डोमेन, this you have to find out. Question, I'm taking fx is equal to, या मैंने माइनस लिखा था, अब मैं प्लस कर दे रहा हूं बस. ये बताओ. नेक्स्ट इज 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x
greatest integer x. 3 questions I have taken, beta. Domain definition is set of point for which this function is defined. ये तो क्लियर दिख रहा है बेटा. मैंने यहाँ पे बीच में नेगेटिव था तो नेगेटिव आ रहा है, राइट? 0 to infinity. वेरी गुड. 0 to infinity. 0 is included or not, beta? So not included. Not in. Why? Reason? So because 1 by 0 Undefined हो is जाएगा. not defined. 1 by 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अदरवाइज अगर ये न्यूमरेटर में होता तो 0 इंक्लूडेड होता बेटा. विदाउट ये क्वेश्चन ऐसे भी है बेटा, रूट ऑफ x प्लस मॉड x. अगर क्वेश्चन ऐसे है तो इसका डोमेन हो गया 0 to infinity where 0 is included. But as because of this is in denominator beta, so its domain is 0 to infinity. Because जैसे ही अगर ये 0 हो गया तो 1 by 0 is not defined. So it means the set of point for which this function is defined is 0 to infinity. दूसरा बताओ बेटा, second one. देखो आपको इसका करने का तरीका बताता हूँ. रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. मुझे सिर्फ ये बताओ बेटा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.79? Sir 1. 1. What is the greatest integer value of minus 2.1? -3. Minus 3. Right? Okay. What is the greatest integer value of 1? 1. Sir 1. 1. Right? अब सपोज करो मैंने वैल्यू 1 ली. 1. तो 1 minus greatest integer 1. This is equal to what? 0. 0. 0. Right? And अगर मैं लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे, तब क्या आ रहा है बेटा? 0. 0. So 1, 2, if you take 3, this is again 0. ठीक है बेटा, बोलो. Yes, sir. ठीक है. So what I am taking integers, so this is giving you 0 answer. And basically my question is this one. और अगर मैंने 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो गया, इसका मतलब ये इंटीजर्स मुझे नहीं लेने. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर मैं -3 लेता हूं, चलो -3 ग्रेटर इंटीजर, देखना बेटा ये क्या आएगा. बताओ भाई, 0. अगर मैंने तब भी 0 आ रहा है. ठीक है. -2 ले रहा हूं तो तब भी 0 आ रहा है. ठीक है ना, तब भी 0 आ रहा है बेटा. तो इसका मतलब मेरे ऑल इंटीजर्स मैंने हटा दिए इसमें से. अब उसके अलावा चेक करो बेटा, अगर मैंने 2.1 लेता हूं x की वैल्यू, सो रूट ऑफ 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर. इसका आंसर कितना है बेटा? 2.1 माइनस 2 वैल्यू इज 0.1. 0.1. राइट बेटा. तो यानी ये डिफाइंड वैल्यू है बेटा. तो इट मींस इसका जो डोमेन हुआ इस क्वेश्चन का, मेरा क्या होगा बेटा डोमेन? बोलो, खुद बताओ भाई. सिर्फ इंटीजर्स पे गड़बड़ आ रहा है, ये नॉट डिफाइंड आ रहा है. तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट इंटीजर्स. ठीक है. बोलो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर? सर लास्ट पेज सर दिखा पॉसिबल. दीजिए. लास्ट पेज दिखाऊं बेटा? ओके. इसका आंसर r-z. इसका आंसर बोलो. सर जो है रूट x प्लस मॉड x, सर इसका नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते सर? 1 बाय नहीं सर, 1 बाय वाला नहीं. अच्छा ये वाला. रूट वाला. यस सर.
बेटा वो तो मैं इसको समझाने के लिए कर रहा था कि अगर 0 ले लेते हैं तो ये तो डिफाइंड है, नेगेटिव पे भी आ जाएगा ये। आपका इसका आंसर आएगा सर क्या लोगे आप, जैसे -2 लिया आपने, इनफिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना? हाँ, तो -∞ to इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और इसके बीच में 0 आता है, ठीक है। 0 मैंने अगर डिनोमिनेटर में लिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ सर वो मैं खाली न्यूमरेटर वाले के लिए बोल रहा था। ठीक ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक। डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा नहीं एडिशन माइनस में, मतलब अगर माइनस होंगे डिनोमिनेटर में तो हो नहीं पाएगा। मैं नहीं समझा बेटा, आप क्या कह रहे थे? मैं सर अगर डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव हो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि 0 हो जाएगा। अगर x नेगेटिव होगा कुछ भी, जैसे -1 तो -1 तो हाँ, वो प्लस 0 हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। और यहाँ पे इसीलिए फाई आया था, इसी की वजह से, ठीक है। चलो, अब मुझे इसका बताओगे बेटा, व्हाट इज दी, कोशिश करो इसके हिसाब से। 0 to infinity. 0 to infinity आंसर है बेटा ये, Argentina. RL सिन्हा। 0 is included or not बेटा? Not No, sir. include. Not Not included. included. Okay, one more. चलो अब इसकी रेंज बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की रेंज, इसकी रेंज बताओ। जीरो से 1 के बीच में सर 1 to infinity। 1 to infinity, एक 0 से 1 बोला बेटा किसी बच्चे ने। 0 to 1 किसकी वैल्यू बेटा? 0 to 1। माय क्वेश्चन इज रेंज ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस मॉड x। इसका डोमेन अभी हमने निकाला था, डोमेन क्या था बेटा? रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स, ठीक है। अब ये 0 to 1 किसकी वैल्यू बेटा? दिस इज माय f(x). इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 to 1 है। एक आंसर मुझे मिला 1 to infinity। बोलो भाई। 0 to 1 किसने बोला था बेटा? एक बार देखो अपने, मैं डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ बेटा, रॉन्ग हाँ है सर, एक या बार सही है बेटा? चेक करो। 0 to 1 तो So 0 to 1. इसकी वैल्यू है 0 to 1 तो। मेरे ख्याल से आपकी जो Yes, sir. है ना, आपकी इसकी वैल्यू है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है 1 by this। आपका जो ये 0, सॉरी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस इंटीजर्स। आप ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करो। चलो ये ले लेते हैं 3.4, 3.4 लेते हैं तो 3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4, दिस वैल्यू विल लाई बिटवीन दिस वन। देख लो, आप चेक कर लो। 3.4 माइनस 3 विल बी बिटवीन 0 to 1। 3.4 माइनस 3.4, तो इससे ऊपर जाएगी नहीं वैल्यू। सो इट मीन्स जो ये वैल्यू है बेटा, दिस इज बिटवीन 0 to 1, बट माय क्वेश्चन इज दिस वन बेटा। तो रूट लगा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा बेटा? नो सर। रूट ऑफ दिस वैल्यू इज ऑल्सो No, sir. लाइंग बिटवीन
0 to 1 और नॉट? यस अब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, बोलो भाई? अब बताओ बेटा, अब मैंने इसको, साइंस भी चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, तो क्या हो जाएगी बेटा, बोलो? फिर आ जाएगा ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 0। ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 0? भाई क्या अच्छा बोल रहे हो? इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। यस, ठीक है। किसी को सही। डाउट है तो अभी यहाँ पे देखो, सर कोई डिस्कस, इंफिनिटी कैसे आया? आप बताओगे, खुद बताओ। सपोज करो यही वाली वैल्यू ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, यही वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3.4, ठीक है। तो ये आता है 1/√0.4 एंड अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ अब, तो ये हो गया 1/, इसका कुछ वैल्यू आप, क्योंकि एग्जैक्टली रूट तो नहीं आएगा, कुछ गेस कर लो कितना आएगा। ये चलो ऐसा ले 0.02। 0.04 ले लेते हैं, चलो ऐसे 3.04, तो अब ऐसे ले लेते हैं, चलो ठीक है। अजीब ही तो करना है बेटा अभी, तो वैल्यूज के नियर पहुंचना है आइडिया के लिए। तो ये हो गया बेटा 0.2, सॉरी इसकी वैल्यू आ गई 1/0.2, ठीक है। अब सही है बेटा, बोलो अगर ये √0.04 है, तो √0.04 इज 0.2, इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा बेटा? 5. ठीक है। आप इस तरीके से देखो, मैंने तो बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है, आप और छोटे पे जाओ, 3.00001, एग्जैक्टली 1 नहीं आएगी बेटा, सारी वैल्यू 1 से ऊपर आएंगी, बिकॉज नीचे जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। जब नीचे की वैल्यू कम होगी तो ऊपर की वैल्यू अपने से इंक्रीज होती चली जाती है। ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि डिफाइंड नहीं है मुझे हाईएस्ट कहां तक जाएगी, इसलिए मैंने इन्फिनिटी बोला यार, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन, इसका डोमेन और रेंज दोनों बताओ। 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, पहले डोमेन बताओ देन रेंज। सर डोमेन तो रियल नंबर्स हो गया। ओके, सर रेंज भी रियल नंबर आ जाएगी फिर। एक बार और चेक करो बेटा। सर रेंज माइनस, बोलो रेंज क्या बोला बेटा? माइनस इन्फिनिटी टू 0। माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 इज क्लोज और ओपन? क्लोज। क्लोज। 0 के लिए मुझे बताओगे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, चलिए 4। और अगर मैं 5 लेता हूं तो क्या आएगी? -1। -1। थ्री लेता हूं तो कितनी आएगी बेटा? एग्जैक्टली 3 लेता हूं तो 1. तो 1 तो आपने लिया ही नहीं बेटा यहाँ पे। बोलो बेटा। The range will be minus infinity to 1. आप सही बोला, ठीक है ना। देखो मैं जितना टाइम आप लगा रहे हो उतना ही टाइम मैं भी लगाता हूँ उसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको भी उतना ही क्लियर है जितना मेरे को भी क्लियर है। बस एक और चीज ध्यान रखा करो, जो आपने फाइनली डिसाइड की है एक बार चेक कर लिया करो। रेंज की बात कर रहे हो तो कहीं इसके राइट में, जैसे आपने 0 बोला, 0 टू इन्फिनिटी बोला, माइनस इन्फिनिटी, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि कोई वैल्यू 0.1 तो नहीं आ रही, इसके ऊपर तो नहीं आ रही।
अगर है तो फिर फाइनल मेरा यही है, इतना कर रहा हूं बस मैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है बेटा, इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि डोमेन मेरा रियल नंबर है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू become less than equal to if you multiply both side by negative sign, then adding 1, so this is giving you 1 and this is your function, so this is giving you less than equal to 1, तो 1 आपके पास है, ये रहा, ये आपको कह रहा है less than equal to 1 जाओ आप, तो मेरा 1 2 इसमें 1 ऐड नहीं किया था। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। Sir, यस बेटा। sir, when x is equals to 0, then it should be -2 or 4. आपने बोला when x is equal to 0, Yes, 1 sir. minus of -3, तो 1 minus 3 -2 आ रहा है बेटा। Yes, sir. मॉड के बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो गई, और 1 minus 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, बताओ भाई, इसका Yes. डोमेन एंड इसका रेंज, इसका डोमेन स्पेसिफिक है, डोमेन बताओ इसका, रेंज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। R. R R minus -2 and 2. ध्यान से सोचो बेटा सब जने, इट्स अ गुड Sir, क्वेश्चन। R -2 and 2. R minus 2 and 2, ओपन और क्लोज बेटा? Sir, closed. क्लोज्ड, दिस इज द डोमेन। चेक करो बेटा कितने बच्चों Sir, का आ रहा है ये। open. Sir, open. ओपन, चलो ओपन ले Yes, लिया। sir. बताओ भाई कितने बच्चों का आ रहा है? सही कर्ली ब्रेसेस में ही होनी चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो दिस इन करली ब्रैकेट -2 2। चलिए एक और आंसर आ गया भाई। Yes, sir. I also think it will be this. दिस वन बेटा, ओके। चलो 2 वोट मिल गए इस आंसर को। Sir, me too. वोट्स 3 वोट्स। ओके, इस आपने ये ले लिया बेटा। belongs to अगर आप ये बोल रहे हो तो अगर क्या खाली मैं 1 पुट करूं तो क्या ये डोमेन नॉट डिफाइंड होता है? देखना बेटा एक बार, इफ वी पुट x इक्वल टू 1, क्या ये नॉट डिफाइंड है बेटा? नो सर, 0 हो जाएगा। 0 आएगा, तो Yes, हमने sir. सिर्फ -2 और 2 लिया है, उसके अलावा बाकी सब वैल्यू के लिए वैलिड है, यही बोल रहे हो ना इसका मतलब? यस सर। यही हुआ ना? हाँ, मेरे ख्याल से यही आंसर है फिर तो। यस सर। तो मेरे ख्याल से यही आंसर है। सर क्या बेटा? 1 और 2 के बीच में लेंगे या फिर -1 और -2 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, मैं वही चेक कर रहा था, बस वही कि क्या ये पूरा अगर वैलिड है? होगा नंबर तो -1.1। अच्छा, आपने लिया -1.1 राइट, या पॉजिटिव? सर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लोगे सेम ही रहेगा कुछ भी मॉड ले की लो, वजह से। चलो तो ये लिया हमने 1 माइनस या 1.1 एंड 2 माइनस 1.1। यस बेटा, तो यानी कि मुझे ये वाली रेंज भी हटानी पड़ेगी। यस सर। सर R माइनस क्लोज 1 to 2 माइनस क्या क्लोज -1। देखो मुझे जो लग रहा है, एक मिनट, -2 पुट करूंगा तो 0, तो ओपन हो गया यूनियन सर यही 2 होगा to सर। infinity
सर इसकी जगह 1 होगा शायद ना, 1 हाँ वो लिख के माइनस देना। 1। अब देखना, एक मिनट, ओपन आएगा क्लोज। इफ वी पुट -1 0 -1 डिफाइंड 1 0 डिफाइंड एंड देखना बेटा, आप देखना एक बार। सर यही होगा, हम्म यस So I होगा think सर। यही आप better to write this one बेटा now। ठीक है बेटा, मतलब फर्स्ट गो में तो ये दिख रहा है बेटा एक बार को, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो ये 2 पॉइंट और आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 एंड -2 के बीच में इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं जिसपे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है बेटा। -1 एंड -2 के बीच में देयर आर मेनी पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना बेटा, बोलो बेटा, चेक। ठीक है, सिमिलरली 1 to 2 के बीच में भी देयर आर मेनी पॉइंट्स वेयर इट इज गेटिंग नॉट डिफाइंड बेटा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। चलो वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं ये कितने बच्चों का ठीक होता है। सर पेपर में एमसीक्यू आएंगे बस? हाँ एमसीक्यू, इनके ऑप्शन दे रखे होंगे ये। सर अगर लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे, सर है ऐसे बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए सर तो हमें ढंग से तब भी करके ऐसे दिखाना आएगा। पड़ेगा या फिर? नहीं 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 बेटा, डोमेन और रेंज यू हैव टू, दिस विल बी कमिंग इन ओनली 1 मार्क मैक्सिमम टाइम बेटा। अगर किसी में आ रहा है, अगर उसमें भी आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। जैसे मान लिया मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ दिस, डोमेन रेंज ऑफ दिस, तो डोमेन आपने ये लिख दिया, रेंज आपने लिख लिया, 2 नंबर पूरे मिल गए आपको। बिकॉज दिस इज समवेयर लॉजिकल ऑल्सो बेटा, आप अपने ब्रेन में ही सॉल्व कर रहे हो, आप इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन चेक नहीं कर रहे, आपने अपने आप अपने माइंड में डोमेन के अकॉर्डिंगली इसका लेफ्ट और राइट बाउंड्री डिसाइड कर दी, दैट इज सफिशिएंट बेटा। ठीक है, तो डोमेन रेंज में आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तब भी ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन इज, हाँ। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, ठीक है। नाउ हाँ बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट था बेटा, बोलो। Sir, can you tell range for the last question? बेटा रेंज इसमें कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, तभी तो मैंने बीच में कट कर दिया क्वेश्चन। रेंज करने बैठेंगे तो आज की पूरी क्लास निकल जाएगी। अब नाउ इन दिस टाइप ऑफ डोमेन यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज बेटा। तो देखो, जब जैसे इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसमें वैसे ही रेंज निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो नॉर्मली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन में वो रेंज पूछेंगे ही नहीं आप। सर ठीक है बट ना? इस टाइप क्वेश्चन में तो 0 से इंफिनिटी ही होगी ज्यादातर, क्योंकि आप सर मॉड वेरीफाई करो कैसे, आप इसमें बेटा बहुत टाइम लगेगा, आप एक फाइनली कंक्लूड नहीं कर सकते आप एक बार में। हो सकता है बाय चांस आपने जो बोला वो आंसर इसको सूट कर रहा हो, 0 to infinity 1/2। So -1, बेटा ये रूट के अंदर है, पहली बात तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर होगी बेटा वैल्यू, डिनोमिनेटर बड़ा आएगा न्यूमरेटर से, ऊपर से बिल्कुल इंफिनिटी तक तो जाएंगे। जाएगा ही नहीं बेटा ये तो ये थोड़ा सा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा, इसको मतलब मैं आप 2-3 बच्चे और लगेंगे, मैं एक आंसर बोलूंगा, आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो मैंने ये आंसर बोला, अभी एक बच्चे ने बोला सर इन्फिनिटी तो जाएगा ही नहीं, अब मेरी रेस्ट्रिक्शन हट गई, चलो हटाओ भाई, आप कहाँ पे बाउंड्री करो उसे डिसाइड। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में रेंज थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया क्योंकि इट विल टेक टाइम बेटा, मैंने इसलिए रोक दिया था बस यहीं पे। जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है, मुझे नहीं लगता इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, वरना पूरा दिन लग जाएगा इसमें सोचने में। सर ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था उसमें, लाइक रेंज ही निकालनी थी। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन पूछा था अभी, तो मैंने ऐसे ही रैंडम बोल दिया था फाइंड डोमेन ऑन रेंज, फिर मैंने एकदम से सडनली डिसाइड किया दिस इज रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन है। तो मैंने कहा वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका डोमेन डिसाइड करना ही, फिर इसका रेंज डिसाइड करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये हो सकता है मे बी आपके जेई में पूछे, बट मेरे सीबीएसई का कहीं से भी नहीं है, डोमेन तक मेरा सीबीएसई है बेटा ये।
चलो आप बताओ बेटा इसका। So 3 to infinity. सर 3 शायद to से x greater than 4 और x smaller than -2 आ रहा है। smaller than -2 and greater than 4. नहीं सर एक मिनट सर एक बार और थोड़ा -2 और 4 वो सर 3 -2 की जगह -3 होना चाहिए वैसे। यहाँ पे कितना होना चाहिए बेटा? -3 होगा। -3 और 4 की जगह +3 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं +3 से बड़ा होगा तो 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। सर 4 ही होना चाहिए वो। ये तो सही लग रहा है। इसको एक बार और डिसाइड करो। सर मेरा तो x is greater than 3 आ रहा है। x greater than 3 आ रहा है। एक मिनट चेक करते हैं अभी। सर मेरा तो सर वो आ रहा है सर x is greater than 3 and x is greater than -2. x is greater than 3 and x is greater than -2. तो अगर 3 से बड़ा तो फिर -2 से तो अपने आप ही बड़ा हो गया। तो इसलिए x is greater than 3। स्मॉलर बोल रहा होगा वो, गलती से ग्रेटर बोल दिया उसने। नहीं मेरा भी ग्रेटर देन ही आ रहा था -2 से। अच्छा एक सेकंड पे डिस्कस करते हैं। देखो 1 सेकंड। अब एक चीज है, पहले डिनोमिनेटर में रूट पे आते हैं। रूट इज डिफाइंड ओनली फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट बिकॉज दिस इज इन डिनोमिनेटर सो विल टेक ग्रेटर देन 0 ओनली, राइट? So this is greater than 0. So according to this, x should greater than 3 and this should less than -2. देखना बेटा इसके साथ ठीक है। 3 से ग्रेटर लेता हूं और इसको लेस देन लेता हूं तो हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया। इक्वल टू 4 भी चलेगा। इक्वल टू -3 नहीं अब इक्वल टू -3 कैसे आ गया भाई? सर इक्वल टू -3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी -3 हो जाएगा ना। नहीं देखो अगर आप ये ले रहे हो अब आपके पास हाँ सर तो यही रहेगा। वो डोमेन में कह रहा हूँ मैं। डोमेन में कह रहा है सर वो कि -3 भी इंक्लूड होगा। मैं भी डोमेन कह रहा हूँ। -3 कैसे ले लोगे आप? सर क्योंकि सर -2 के ऊपर जितनी भी सर वैल्यूज हैं वो सर वो -3 पे ही जाएंगी। मतलब चलो आप ये कह रहे हो ना -3 के बीच की वैल्यूज हैं, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। पूरी हो जाएंगी में तो GIF उस पे ही जाता है। हाँ मेरे कहने का मतलब है आप जो बोल रहे हो उसमें -2 आंसर में है या नहीं है? ये तो है ना बेटा -2। सर अगर -2 से छोटा होगा -3 पे जाएगा तो फिर -2 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब 3.1 लेते हैं तो इफ वी टेक 3.1 तो दिस इज 3 - 3 0 नहीं जाएगा। 3.2 3. नहीं तो 3 तो जाएगा। इट विल बी 4 to infinity। पहले बोला था किसी ने बच्चे ने आंसर। यस मैंने बोला ये आ रहा है बेटा मेरा। इसमें बस इक्वल टू और लगाना है, बाकी सारा सही है। देखना बेटा एक बार। सर -3 आना चाहिए यहाँ पे सर, क्योंकि नहीं मैं वही तो कह रहा था। -2 से छोटा जितना भी होगा वो अपने आप -3 पे ही जाएगा, तो इसलिए -2 सही है। ठीक है ना? लेगा तो -3 हो जाएगा ना, तो फिर वो सही हो जाएगा। यस ठीक है बेटा। और आपके बताओ बेटा, कोई और डाउट आ रहा तो बताओ। बाकी इन टॉपिक में यही चीजें हैं। ठीक है, आपको मैंने वर्कशीट आपको सेंड करी दी है, एक बार और ट्राई करना। और होल डे यू आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन टुडे बेटा। आई थिंक टुमारो यू हैव मैथ्स यूटी, राइट बेटा? तो आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हो व्हाट्सएप पे बेटा। जो भी कोई डाउट आता है इन 2 टॉपिक से रिलेटेड, सेट 1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एंड टिल 3.2, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। ठीक है, अभी मेरा बस यहाँ पे 12 o'clock तक मेरी क्लासेस हैं, उसके बाद मैं फ्री हूँ। आप जब भी क्वेश्चन भेजोगे मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा, समझा के भेजूंगा।
ठीक है, प्रैक्टिस करना बेटा। पेपर डिफिकल्ट आप अगर नहीं पढ़ोगे तो लगेगा, अदरवाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर मान लिया मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो कॉन्सेप्ट आपको पता है और सफिशिएंट टाइम वी हैव गिवन टू सिंप्लीफाई द सॉल्व द पेपर बेटा, दैट प्रेस्क्राइब टाइम बेटा यू हैव टू सॉल्व योर आंसर, यू हैव टू राइट योर आंसर। आई थिंक अगर OMR शीट वाला कॉन्सेप्ट होगा तो फिल करना है, अदरवाइज यू हैव टू राइट योर आंसर इन अ पेज लाइक दिस वे बेटा। फर्स्ट राइट योर नेम, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इफ दिस इज योर शीट बेटा, राइट योर नेम हियर एंड क्लास सेक्शन हो गया बेटा आपका, ठीक है, क्लास एंड सेक्शन टॉप राइट पे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 B पार्ट, 3 C पार्ट, दिस वे यू हैव टू राइट। कुछ लोग का अल्फाबेट बहुत अजीब सा होता है बेटा, A नहीं लगता, B नहीं लगता बेटा, तो मेरा सजेशन है वो A में ऑप्शन अगर 4 लिखा है तो वैल्यू भी लिखें 4, क्योंकि अगर मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आया तो मैं क्रॉस लगा दूंगा और मैं 0 दे दूंगा। बट अगर आपने आंसर वैल्यू लिखी होगी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपका अल्फाबेट यही कह रहा है, क्योंकि बहुतों की राइटिंग बड़ी गड़बड़ सी होती है, वो कुछ भी लिख देते हैं, समझ में नहीं आता। C भी उनका A लगता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं बेटा वो, C और A में कंफ्यूजन, तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ, मैंने क्रॉस कर दिया बेटा। ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि देखो अभी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। मैटर हाँ नहीं बेटा, करती क्या बेटा? तो वर्किंग मैटर नहीं करती ना क्वेश्चन की। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैंने आपसे कहा ना, अगर ये सिर्फ टोटली MCQ है तो इसका मतलब मुझे बस यही चेक करनी है बेसिकली। और एक और चीज बेटा, स्कैनिंग के टाइम पे आप है ना स्कैन करते हो तो ये एडिट कर देते हो इतना, क्योंकि जब हमारे पास कॉपी होती है तो फिर आपका नाम और ये भी गायब हो जाता है, ध्यान रखना। तो जब आप स्कैन कर रहे हो तो इसकी आउटलाइन बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर तक ले आना बेटा, कहने का मतलब है ये शीट के थोड़ा सा बाहर तक भी आ जाना बेटा, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बच्चे का इतना पोर्शन गायब हो गया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 गायब हो गया। अब बच्चा कह रहा है सर मैंने भेजा लेकिन हमें नहीं दिख रही बेटा वो शीट, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी शीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसके ऊपर इतना मार्जिन लेके इसकी स्कैन करोगे सब बच्चे। पहले बोल रहा हूँ बेटा, अगर दोबारा बोलने का मुझे मौका मत देना, बस ये कह रहा हूँ, बिकॉज पहली बार में जो नंबर हो गए वो नंबर हो गए आपके, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। मेरी गलती है उसके नंबर में दूंगा आपको, लेकिन आपकी जो गलती है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो गलतियां मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया उसको मैंने आपको बता दिया, ये गलतियां रिपीट मत करना, ठीक है। पेपर को मार्जिन से थोड़ा सा और बाहर ले लो, ताकि जब मेरे पास जो चेक, क्योंकि हम लोग वन ड्राइव में चेक करते हैं बेटा, वहां जब ओपन होती है ना शीट तो वो पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता रीजन क्या है। मैंने घर पे खुद भी चेक कर लिया है, मैं यहां से लेता हूँ, मेरे PDF में दिख रहा है ये आंसर, लेकिन जब वन ड्राइव में होता है तो ये चीज गायब हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ से गायब हो गया, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए फॉर एन एग्जामिनर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया ही नहीं है, ठीक है। मैं रेस्ट क्वेश्चन में आपको नंबर दे, तो ध्यान रखना बेटा इस चीज का बस। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था? वाला, हाँ जी सर तो इसमें इक्वल टू 4 भी हो सकता है ना? हाँ, तभी तो दिया क्लोज ब्रैकेट। अच्छा हाँ सर, मैंने देखा, ठीक है ना, क्लोज दिया मैंने। Sir, we will be having our regular classes tomorrow or not? बेटा I don't think so, that's why I'm telling you that try to ask your class teacher, give a message to your class teacher, she will convey you बेटा। और सब पेपर कब से है? 9 o'clock पेपर है हाँ, मेरे ख्याल से 9 o'clock है। हाँ, मैं अभी ना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को बोलता हूँ, शायद आपके पास इससे रिलेटेड सर्कुलर आया नहीं है, ठीक है, मैं एक बार और बोल देता हूँ, वो आपको अभी मैसेज कर देंगे आपको, ठीक है ना, मतलब सारे क्लास टीचर आप लोगों को मैसेज के नीचे गाइडलाइंस थी ना बेटा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक बार देखो उसमें लिखा होगा, देखो सब चीज लिखी होंगी बेटा, whether the your classes are there or not, or at what time the examination will start. I think it is 40-minute exam, so 9 to 9:40 आपका टाइम होगा, राइट कनक? आई थिंक यू हैव यस सर, ये टाइम है। तो सबमिट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा? मेरा कहने का मतलब है आप इस पीरियड में जैसे ही होगा, ये तो हो गया आपको सॉल्व करने का, फिर टीचर बोलेगा विद इन 5 मिनट यू हैव टू स्कैन एंड सबमिट। कुछ बच्चे तो इससे पहले कर लेंगे बेटा, ठीक है सर। और मैक्सिमम मार्क्स 20 है, 25 मार्क्स पेपर है बेटा।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। आप सब लोग आज पहले वो गाइडलाइंस पढ़ोगे जो अभी कनक ने बताया। ओके कनक सर। कुछ नहीं तो वो वाली गाइडलाइंस है ना बेटा, एक बार मैथ्स के ग्रुप पे डाल देना, ये सारे बच्चे मैथ्स के ग्रुप पे भी हैं, वहां पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूंगा थोड़ा ओके सा। सर। ठीक है बेटा, डाल देना बेटा। हाँ चलो 1 सेकंड बेटा। ओके नाउ यू कैन लीव बेटा। थैंक यू।